إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، سورہ کہف کی تفسیر کا یہ سلسلہ آج انشاءاللہ آیت نمبر 65 اور آیت نمبر 66 کے بارے میں بات آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ. تو ہم شروعات کرتے ہیں آیت نمبر 65 سے. اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا. تو ان دونوں نے پایا. کون دونوں؟ بات چل رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی اور موسیٰ علیہ السلام کے جو جوان تھے، نوجوان خادم یوشع بن نون، یہی دونوں سفر کر کے پہنچے تھے اور انہی کے بارے میں یہ بات چل رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یہ دونوں جو واپس آئے، پھر آگے بڑھ گئے تھے، واپس آئے اور اس جگہ پہ پہنچے جہاں پہ مچھلی گم ہو گئی تھی، مچھلی زندہ ہو کر کے پانی میں چلی گئی تھی. تو وہاں ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا. فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا. دیکھیے گا آیت پر غور کیجئے گا، کیا ہے اس میں کہ وہ دونوں یعنی کون؟ موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون، ان دونوں نے پایا عبدن، ایک بندے کو. یہ جو تنوین ہے عبدن میں، تنوین میں نے آپ سے بارہا ذکر کیا درس میں کہ یہاں تنوین کا بھی معنی ہوتا ہے. یہ تنوین کیا ہے؟ تفخیم کے لیے کہا جاتا ہے. یعنی تفخیم کا مطلب ہے یہاں پر عبدن عظیما من عبادنا، کہ انہوں نے پایا ایک عظیم بندے کو، ایک خاص بندے کو، من عبادنا، ہمارے خاص بندوں میں سے ایک عظیم بندے کو پایا. عبادنا میں جو اضافت ہے اس کو اضافت تکریم اور اضافت تشریف کہتے ہیں عربی زبان جاننے والے، اور اسی طریقے سے قرآن کا مطالعہ کرنے والے وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. دنیا کے یہ سارے انسان بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہی ہیں، لیکن ہمارے بندوں میں سے جب یہ بات کہی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، اس کی خاص نوازش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقام بڑا اونچا رکھا ہے اور ان پر اپنے لطف و کرم کی بارش زیادہ کر رکھی ہے. تو یہ ہے معنی فوجد عبدا من عبادنا. پھر اس کی صفت عبدن کی صفت کیا ہے؟ آتیناہ رحمتا من عندنا. یہ پورا سینٹنس آتیناہ رحمتا من عندنا
पूरा सेंटेंस उस अब्द की सिफत है, यानी एक ऐसे अजीम बंदे से, हमारे खास बंदों में से एक ऐसे अजीम बंदे को उन्होंने पाया जिसको कि हमने अपनी तरफ से खास रहमत दे रखी थी। आतैना हो, हमने उसको दिया। किसको दिया? उस खास बंदे को, उस अजीम बंदे को दिया। क्या दिया? रहमतन। ये दो मफूल होते हैं, और आतैना, ये आतै, ये अरबी ज़बान में आता दो मफूल चाहता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हमने उसको, बंदे को रहमत दिया। ये रहमत में भी जो तनवीन है, ये भी तनवीन खुसूसियत को बता रही है, यानी कहेंगे रहमतन खासतन। दुनिया में जितने भी जानदार हैं, जो भी दुनिया में अल्लाह ताला की मखलूक़ात हैं, सब पर अल्लाह ताला की रहमत है। मैंने पहले बार बार दर्स में यह जिक्र किया है, आज फिर आपके सामने बयान करता हूँ कि दुनिया में अल्लाह ताला की रहमत आम है, सबके लिए है, और सब पर अल्लाह की रहमत की बारिश होती है। अगर अल्लाह ताला की रहमत ना हो तो कोई शख्स एक सांस भी अंदर बाहर नहीं कर सकता। तो कहा इसी को रहमतन। तो रहमतन कैसी रहमत? ये रहमतन खासतन मिन इंदेना, सारी रहमतें अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं। इस रहमत के दो माना मुफस्सिरीन करते हैं। एक तो रहमत से मुराद यहाँ पर नबूवत है, और ये माना ज्यादा मुनासिब है। कुरान में दूसरी जगहों पर भी रहमत का लफ्ज नबूवत के लिए आया है। नबूवत और रिसालत भी अल्लाह ताला की खास रहमतों में से एक रहमत है, खास नेमतों में से एक नेमत है। तो यहाँ रहमत से मुराद नबूवत है, और जब हम ये मुराद लेते हैं रहमत से, तो माना होता है इस आयत का कि वो दोनों पाए हमारे बंदों में से खास बंदे को, जिसको कि हमने अपनी तरफ से खास रहमत यानी नबूवत से सरफराज किया था। और इससे ये बात साबित हो जाती है फिर कि ये खज़िर अलैहिस्सलाम नबी थे। खज़िर अलैहिस्सलाम के बारे में ये अब्द से मुराद वही है खज़िर अलैहिस्सलाम, जैसा कि सही बुखारी में इसकी सरहत मौजूद है। और बाद मुफस्सिरीन जो इससे मुराद लेते हैं खज़िर अलैहिस्सलाम के अलावा दूसरे शख्स को, उनकी वो बात सही नहीं है। सही यही है कि ये खज़िर अलैहिस्सलाम हैं और ये नबी थे। इनके बारे में तीन कौल है अहले इल्म का। एक तो ये है कि वो नबी थे, यही जुमहूर की राय है, यानी मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स इसी बात के कायल हैं कि वो एक नबी थे खज़िर अलैहिस्सलाम। और उनकी ये दलील भी जो यहाँ इस आयत में रहमतन का लफ्ज़ आया हुआ है, इससे ख़ास रहमत, रहमत नबूवत व रिसालत यही मकसूद है। तो कहते हैं कि ये नबी थे। दूसरा कौल ये है कि ये अब्दन सालिहन, माना क्या करते हैं अब्द का, ये अब्दन सालिहन, नेक बंदा। ये अल्लाह के एक नेक बंदे थे, वली थे। वो नबी और रसूल नहीं मानते उनको, सिर्फ जो है नेक बंदा यानी वली। ये भी इसके भी कायल हैं लोग। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जो लोग भी इसके कायल हैं, बड़ा मसला होता है, आगे चल करके बड़े सवालात आएंगे। इसी आगे का जो बयान है उसमें सवाल पे सवाल खड़े होंगे, और जो लोग इसके कायल हैं उनको इसकी जो है यानी आगे इसकी जो परेशानियां हैं इसको कहने के बाद कि उसका सही से अंदाजा नहीं हुआ। वरना सूफिया किराम और दूसरे लोग जो कि अहले बिदअत ने इसी को लेकर के बड़े हंगामे खड़े किए और बड़े तूफाने बदतमीजी उनकी तरफ से, तूफाने बदतमीजी ही हम कह सकते हैं, यानी ऐसी बातें और जो है विलायत का दर्जा, वली का दर्जा, नबूवत और रिसालत से बढ़ा देना और बहुत ऊंचा मकाम, वो सब की सब इसी से दलील लेते हैं। कैसे लेते हैं? कहते हैं कि उनको जो वली होते हैं खास इल्म मिलता है अल्लाह ताला की तरफ से, उसको इल्म लदुन्नी कहते हैं। आगे वो लफ्ज आएगा, और ये सीना बसीना चलता रहता है। ये इल्म सीखने से नहीं आता, और ये जाहिर का इल्म नहीं, बातिन का इल्म होता है। नबी और रसूल तो जाहिर का इल्म रखता है, वली जो होता है बातिन का इल्म रखता है। और शरीयत के खिलाफ काम करने की उनको इजाजत होती है।
वो कुछ भी कर सकते हैं, शराब पी रहे हैं तब भी आप उनको कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि शराब पीना तो आपकी ज़ाहिरी शरीयत में हराम है। जो उनके पास खास इल्म है अल्लाह ताला का, उसके लिहाज से वो बातनी इल्म होता है, उसमें वो जायज़ भी हो सकता है, और अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें खास छूट भी हो सकती है। जिना करते हैं, बदकारी करते हैं, और सब के लिए यही मामला कि वो कुछ भी करें, आप कुछ कह नहीं सकते उनको, क्योंकि उनको इल्म लदुन्नी हासिल होता है, यानी अल्लाह ताला के पास से खास इल्म जो सीना बसीना चला आ रहा है, और ये सीखने से नहीं आता है, ये ज़ाहिरी इल्म नहीं होता है कि आपको समझ में आ जाए। जो वली होते हैं वही जानते हैं, उनके लिए वो चीज़ जायज़ होती है और आपके लिए वो हराम होती है। नमाज नहीं पढ़ते और कहेंगे कि जो है हम जो है विलायत के मर्तबे को पहुंच गए, और उस मर्तबे को पहुंचने वाले को ये जो ज़ाहिरी फ़राइज़ होते हैं इन सब से छुटकारा मिल जाता है। ये सब जो है खुराफात है। उन सारे खुराफात के लिए दरवाज़ा खुल जाता है जब हम ये कहते हैं कि एक वली थे और मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास इल्म सीखने के लिए भेजे गए, इसलिए फिर ये भी कहते हैं कि एक वली नबी से भी, और वो भी उलुल अज़्म जो 5 रसूल हैं उनमें से एक मूसा अलैहिस्सलाम हैं, उनसे भी अफजल है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को उनके पास इल्म हासिल करने के लिए भेजा गया कि एक वली के पास जो इल्म होता है वो बातिन का इल्म होता है, और जो एक नबी और रसूल के पास इल्म होता है वो जाहिर का इल्म होता है। ये सारे खुराफात, ये सारे तूफाने बदतमीजी कह सकते हैं आप इसको, ये सब की सब चीज़ें उससे लाजिम आती हैं जब ये कहा जाता है कि वो एक वली थे, एक नेक बंदे थे अल्लाह के, जिन्होंने भी कहा, बाज़ अच्छे लोगों ने भी, अच्छे जो मशहूर उलमा हैं उनमें से भी बाज़ लोगों ने ये बात कही है, लेकिन शायद उन्हें उस कौल के ताल्लुक़ से उससे जो चीज़ें लाजिम आती हैं बाद में, और जिस तरह से अहले बिदात ने इसी को सीढ़ी बना करके, जीना बना करके अपनी बिदातों की और खुराफात की बिल्डिंगें जो तामीर की हैं, उसका शायद उन्हें सही से अंदाज़ा नहीं हुआ, वरना वो जो है इस तरह की बात शायद नहीं कहते। तो मैं आपसे कह रहा था, दूसरा कौल ये है कि वो वली थे, और तीसरा ये कि वो एक फरिश्ता थे, क्योंकि जो काम अंजाम पाया है, आगे जिसका जिक्र आएगा, आम तरीके से अल्लाह ताला फरिश्तों को भेज करके इस तरह के काम उनसे जो है इस तरह का काम उनसे होता है, अल्लाह ताला उनके हवाले इस तरह के काम करता है, उनको इस तरह का हुक्म देता है, और वो दुनिया में आकर के इस तरह के काम अंजाम देते हैं। तो इस लिहाज से उनको फरिश्ता होने का भी एक कौल जो मौजूद है। लेकिन हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की एक बड़ी मशहूर किताब है इस सिलसिले में खज़िर अलैहिस्सलाम के बारे में, और उसमें और जो बात बहरहाल उन्होंने बहुत जो है तहक़ीक़ के साथ बात लिखी है, कुरान की जो ये आयतें हैं उससे भी कहीं न कहीं ये बात साबित होती है कि वो एक नबी थे, और जब नबी मानते हैं तो बहुत सारी जो हमने आपसे कहा कि जो बिदअतें और जो खुराफात औलिया को लेकर के जो दुनिया में जो है जिक्र की जाती है, जो अहले बिदअत की तरफ से चीज़ें पेश की जाती हैं, कहीं न कहीं इन बिदअत व खुराफात का दरवाज़ा बंद करने में मदद मिलती है जब हम ये कहते हैं कि एक नबी थे, एक रसूल थे। क्या कहा, आतैना हो रहमतम मिन इंदिना, हमने उनको अपनी तरफ से खास रहमत दी। ये रहमत जो है तनवीन, ये भी उसी माना में है, तफखीम के माना में। तो ये एक तफसीर थी। दूसरी तफसीर जो इसकी की है बाज़ लोगों ने वो ये है कि यहाँ पर रहमत से मुराद नेमत है। मैंने मुफस्सिरीन की 2 बातें आपके सामने जिक्र करने के लिए कहा था, तो एक बात जिक्र की रहमत से मुराद यहाँ पर नबूवत है, और दूसरे ये कि नेमत मुराद है। यानी क्या माना है, आतैनाहु नेमतम मिन इंदिना, तो ये भी खास नेमत, वरना तो दुनिया की हर मखलूक अल्लाह की नेमतों में ही जिंदा है, सांस ले रही है, और अल्लाह ताला की नेमतों के ज़ेरे साया ही सारी की सारी चीज़ें पनप रही हैं। लेकिन ये खास रहमत मुराद है। फिर कहा मिन इंदिना, हमने अपनी तरफ से उन्हें खास रहमत दी थी, खास नेमत दी थी। उसके बाद क्या कहा, वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, और हमने उनको सिखाया अपनी तरफ से
خاص علم. علم بھی یہاں پر جو تنوین ہے یہ بھی تفخیم کے لیے ہے، یعنی علما عظیما. یہ وہی علم ہے جو علم نبوت ہوتا ہے، جو وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو سکھاتا ہے. یہ خاص علم ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے اس کے خاص بندوں یعنی انبیاء کرام کو، رسولوں کو جو خاص علم دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھایا جاتا ہے. جیسے آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام جو ہے سکھا دیے، بتا دیے. تو یہ اصل اس سکھانے کے تعلق سے. اب اس کے بعد اس آیت پر غور کیجئے، اس کی بلاغت پر، تو آپ دیکھیں گے. پھر سے پڑھتے ہیں آیت، اور آیت کی بلاغت پر، عربی بلاغت پر ذرا غور کیجئے گا. کہا اللہ تعالیٰ نے فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. دیکھیے تھوڑا فرق کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر. پہلے کیا کہا؟ رحمتم من عندنا، پھر اس کے بعد کیا کہا؟ من لدنا علما. ترتیب میں من لدنا بھی بعد میں آئے گا، جیسے رحمتن کے بعد من عندنا ہے، ویسے ہی علمن کے بعد آنا چاہیے من لدنا. ترتیب کیا ہوگی؟ وعلمناہ علما من لدنا، علما من لدنا. لیکن بہرحال سجع کو برقرار رکھنے کے لیے من لدنا کو پہلے لایا گیا اور علمن کو بعد میں لایا گیا. دوسری بات کیا ہے کہ پہلے کہا رحمت کے ساتھ من عندنا اور علم کے ساتھ کہا من لدنا. من لدنا معنی میں دونوں تقریباً ایک جیسے ہی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دو الگ الگ لفظ استعمال کیا ہے، اور یہی یہاں اس آیت کی بلاغت بھی ہے. اور جب آپ پڑھتے ہیں تو یقیناً پڑھتے ہوئے خاص طرح کی لذت اس سے محسوس ہوتی ہے، اس بلاغت کو جب ہم محسوس کر لیتے ہیں. تو میں پھر سے معنی آپ کے سامنے کرتا ہوں فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا. تو دونوں نے یعنی موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون، اس پوائنٹ کو بھی نوٹ کیجئے گا. یہ پوائنٹ بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ اب تک جو ذکر ہوا ہے اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے نوجوان خادم یوشع بن نون دونوں کے لیے پروناؤن استعمال کیا گیا. اس میں بھی دونوں کے لیے پروناؤن ہے، دونوں کے لیے ہے کہ ان دونوں نے پایا ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے کو، جس کو کہ ہم نے اپنی طرف سے خاص رحمت یعنی نبوت عطا کی تھی، اور اسے اپنی طرف سے خاص علم نبوت ہم نے سکھایا تھا، وحی کا علم ہم نے اس کو دیا تھا. یہ بات تھی خضر علیہ السلام کے بارے میں. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اپنے نوجوان کے ساتھ، تو جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، آئے تو ایک آدمی وہاں سویا ہوا ملا، آ کر کے ان کو جواب دیا، سلام کیا. تو انہوں نے خضر علیہ السلام نے سلام سن کر کے کہا وَأَنَّا بِأَرْضِكَ السَّلَامُ، تمہاری زمین میں سلام کرنے والا کون آ گیا یہاں پر؟ جب انہوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا کہ میں موسیٰ ہوں، تو انہوں نے کہا موسیٰ بنو اسرائیل کی طرف جو نبی موسیٰ بھیجے گئے وہ موسیٰ. موسیٰ نام کے بہت سے ہو سکتے ہیں، نام ہے ایک موسیٰ، تو اس لیے پوچھ لیا. اس سے بات ثابت ہو گئی، یعنی اس صحیح بخاری کی جو حدیث، اسی سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ خضر علیہ السلام کو بھی غیب کا کچھ علم نہیں تھا، ورنہ لوگوں نے تو ان کا مقام اتنا بڑھایا جو کہتے ہیں کہ صرف وہ ولی تھے، نبی بھی نہیں مانتے ان کو، ولی کہتے ہیں، اور مقام اتنا اونچا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غیب کا بھی علم دے رکھا تھا. آگے جو 3 واقعات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کیا کہہ دیتے ہیں کہ ان کو جو ہے غیب کا علم ہوتا تو کیا وہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں جان جاتے کہ یہ موسیٰ کون سے ہیں؟ ان کو پوچھنا پڑتا کہ جو ہے موسیٰ بنی اسرائیل کے جو موسیٰ ہیں، یعنی بنی اسرائیل کی طرف جن کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے وہی موسیٰ اب ہے؟ تو کہا کہ ہاں وہی موسیٰ ہے. اب یہ بات جو ہے خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہو گئی، اور اسی کا یہاں پر ذکر ہے. اب ملاقات ہونے کے بعد اب آگے سے جو ذکر آ رہا ہے
पूरे जिक्र में अब यूशा बिन नून गायब हो गए, यानी अब उनका कहीं कोई नामो निशानी नहीं है बातचीत में। अब जो कुछ भी है मूसा अलैहिस्सलाम, खदिर अलैहिस्सलाम, और इनको बिल्कुल अब खत्म, क्योंकि अब उनका काम जो था वो क्या था कि ये आए थे साथ में खिदमत के लिए मूसा अलैहिस्सलाम की, और यहाँ से अब मसला सिर्फ उस्ताद और शागिर्द यानी खजिर अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र होगा और खादिम का जिक्र नहीं होगा। उसी को देखिए आगे की आयत में कहा क़ाल लहू मूसा, अब यहाँ पर क्या है क़ाल लहू मूसा, अब यहाँ पे सब वही रहेगा, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ज़मीर रहेगी प्रोनाउन और खजिर अलैहिस्सलाम, बस अब तस्निया की ज़मीर नहीं आएगी, डुअल जिसे कहते हैं जिसमें दोनों आ जाते हैं, यानी मूसा अलैहिस्सलाम भी यूशा बिन नून भी, अब दोनों का जिक्र नहीं आएगा, सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम का होगा। कहा क़ाल लहू मूसा, तो उनसे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, किनसे खजिर अलैहिस्सलाम से, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा। अब ये देखिए वो एप्लीकेशन दे रहे हैं उनके पास इल्म हासिल करने के लिए, तो एप्लीकेशन देने का अंदाज कैसा है इस आयत पर आप गौर कीजिएगा। बड़ी अहम आयत है उन तमाम लोगों के लिए जो कहीं सीखने जाते हैं, जो चाहते हैं कि इल्म हासिल करें, जो भी स्टूडेंट हैं सबके लिए ये बड़ी अहम 5 पॉइंट यहाँ पर इसी आयत के अंदर मैं जिक्र कर रहा हूँ। हर तालिब इल्म, हर जो है जो तालिब इल्म स्टूडेंट इसे नोट कर ले। क्या कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, देखिए मूसा अलैहिस्सलाम अब एप्लीकेशन दे रहे हैं इल्म हासिल करने के लिए उनके पास, तो ये एप्लीकेशन देने का अंदाज कैसा है, थोड़ा सा टुकड़ा है अरबी ज़बान का ये, लेकिन देखिए कितने पॉइंट्स अपने अंदर रखता है, अल्फाज जो उसके अंदर इस्तेमाल किए गए, तो इससे अरबी बलागत, कुरान जो अरबी बलागत के आला मर्तबे को पहुंचा हुआ है, चोटी को पहुंचा हुआ है, उसका भी आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। कहा हल अत्तबिउका, पहला पॉइंट क्या है, क्या कहते हैं हल अत्तबिउका, हल ये क्वेश्चन के लिए आता है, सवाल करने के लिए अरबी ज़बान में। एक होता है आप किसी के पास दरखास्त लेकर के जाते हैं, कोई एप्लीकेशन लेके जाते हैं, तो आप क्या कहते हैं उसको, आप मुझे ऐसा दे दीजिए ग्रांट में, या आप जो है कहते हैं उसे, या ये जो प्लीज गिव मी, इस तरह से आप, ये भी बड़ा एहतराम होता है कि आप कहें प्लीज गिव मी, लेकिन फिर भी आप अम्र का सेगा इस्तेमाल करते हैं। अम्र का सेगा का मतलब क्या है, कमांड जिसे, यानी आप एक तरह से कहते हैं, इल्तिजा के अंदाज में ही कहते हैं, लेकिन कहते क्या है, आप जो सेगा इस्तेमाल करते हैं अम्र का सेगा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम ने वैसा कुछ नहीं किया, क्वेश्चन का, सवाल का अंदाज ये तवाज़ो में अपने आला मकाम को पहुंचा हुआ होता है। यानी क्या कह रहे हैं, क्या मैं कोई दरखास्त नहीं कर रहे हैं कि आप मुझे इजाजत दे दीजिए, नहीं, क्या मैं आपके पीछे पीछे रह सकता हूं, क्या मैं रह सकता हूं, सवाल कर रहे हैं बड़े ही आजिजाना अंदाज से। तो ये सवालिया अंदाज, क्या मैं बाहर जा सकता हूं, क्या मुझे बाहर जाने की इजाजत है, एक तो ये है बाहर जाने की मुझे इजाजत दे दीजिए, एक ये है। तो दोनों में फर्क क्या है कि सवाल करने में लजाजत और ज्यादा हो जाती है, इल्तिमास और दरखास्त का पहलू इसमें और ज्यादा हो जाता है, तवाज़ो इसमें कहीं ज्यादा महसूस कर सकते हैं आप। तो कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने हल अत्तबिउका, ये पहला पॉइंट हल के साथ बयान किया। दूसरा पॉइंट क्या है, कहा अत्तबिउका, अत्तबिउका अरबी में इत्तिबा कहते हैं किसी के नक्शे कदम पर चलना, यानी जैसे जैसे वो आगे चलता जा रहा है पीछे पीछे आप उसे फॉलो करें, तो उसे अरबी ज़बान में इत्तिबा कहा जाता है। ये मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, खज़िर अलैहिस्सलाम से, कि क्या मैं आपके पीछे पीछे चलूं। ये दूसरी बात क्या कह रहे हैं, इत्तिबा, ये नहीं कह रहे हैं कि मैं आपके पास रह करके तालीम हासिल करना चाहता हूं,
میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا، آپ ایسا بھی نہیں کہہ رہے موسیٰ علیہ السلام، کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے پیچھے پیچھے، تواضع کا بڑا ہی اونچا انداز یہ بھی کہ میں آپ کے پاس رہوں گا لیکن آپ کے پیچھے پیچھے رہوں گا، آپ کے ساتھ بھی نہیں، آپ کے آگے بھی نہیں۔ یہ انداز موسیٰ علیہ السلام کا، یہ دوسری بات درخواست دینے کا یہ انداز ہے۔ دیکھیے تیسری بات کیا ہے؟ الا ان تعلمنی، اس کے ساتھ اس پر کہ آپ مجھے سکھائیں، الا ان تعلمنی، کہ آپ مجھے سکھائیں۔ غور کیجئے گا، یہ نہیں کہہ رہے الا ان اتعلم منک، میں آپ کے پیچھے پیچھے رہوں، کیا آپ مجھے اپنے پیچھے پیچھے رہنے کی اجازت دیتے ہیں؟ کہ اس کے لیے کہ میں آپ سے سیکھوں، یہ نہیں کہہ رہے کہ میں آپ سے سیکھوں، کیا کہہ رہے ہیں؟ الا ان تعلمنی، کہ آپ مجھے سکھائیں، آپ مجھے سکھائیں۔ ایک ہوتا ہے میں سیکھوں اور ایک ہے آپ مجھے سکھائیں۔ یہ پوائنٹ ہے، نوٹ کیجئے گا۔ یہ اتنا تواضع، ایسا بھی نہیں کہ میں خود سے سیکھ جاؤں گا، آپ بس رہنے کی اجازت دے دیجئے، اپنا ساتھ ہمیں دے دیجئے، اپنی رفاقت میں لے لیجئے، بقیہ آپ کے ساتھ رہ کر کے میں سیکھ جاؤں گا، کچھ نہ کچھ سیکھ لوں گا، یہ نہیں، بلکہ یہ کہ آپ مجھے سکھائیں گے۔ ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب کو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کا استاد اسے سکھاتا ہے۔ خود سے سیکھتا ہے آدمی بہت کچھ، لیکن کیا ہے؟ ادب یہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ آپ نے مجھے یہ سکھایا، الا ان تعلمنی، کہ آپ مجھے سکھائیں۔ یہ نہیں کہا کہ میں آپ سے سیکھوں، نہیں، آپ مجھے سکھائیں۔ یہ سیکھنے سکھانے کا معاملہ انسانوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جانور خود بخود سیکھ جاتے ہیں چیزیں۔ کہتے ہیں مچھلی کے بچے کو کوئی تیرنا نہیں سکھاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو تیرنا سکھا دیتا ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے تبھی اس کو تیرنا بھی آ جاتا ہے۔ لیکن انسانوں کا معاملہ کیا ہے کہ ان کو ہر چیز سکھانی پڑتی ہے، بتانی پڑتی ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو ان کو سکھایا۔ انسانوں کو سکھانا پڑتا ہے، تو روز اول سے ہی یہی بات چلی آ رہی ہے، انسان کو سکھانا ہوتا ہے، اس کے لیے معلم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس جو ہے نقطے اس پوائنٹ پر آئیے کہ معلم کی اہمیت کتنی ہو جاتی ہے۔ الا ان تعلمنی، کہ آپ مجھے سکھائیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ چوتھا پوائنٹ، مما علمت، اس میں سے جو کہ آپ کو سکھایا گیا ہے۔ اس چوتھے پوائنٹ میں دو چیزیں ہیں، اس کو دونوں کو نوٹ کیجئے گا۔ چوتھے پوائنٹ میں یہ دو فائدے، پہلا ہے یہاں پر من استعمال کیا ہے، جو من تبعیض کے لیے کہا جاتا ہے، تو یہاں تبعیض کے لیے ہے من، مما علمت، مما علمت، مما علمت، اس میں سے جو کہ آپ کو سکھایا گیا۔ یہ نہیں کہا کہ ما علمت، ایک ہوتا ہے الا ان تعلمنی ما علمت، کہ آپ مجھے سکھائیں وہ جو کہ آپ کو سکھایا گیا، یعنی یہ نہیں کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب آپ مجھے سکھا دیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام بڑے تواضع کے ساتھ کہ تھوڑا سا آپ کے پاس جو علم ہے، جو آپ کو سکھایا گیا ہے، اس میں سے آپ تھوڑا سا مجھے سکھا دیں، اس کے لیے میں آپ کے پیچھے پیچھے رہنے کی آپ سے درخواست کرتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں۔ یہ لجاجت بھرا انداز ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو چوتھے پوائنٹ کی یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات کیا ہے؟ کہا مما علمت، یہ نہیں کہا مما تعلم، یعنی اس میں سے جو آپ جانتے ہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا مما علمت، اس میں سے جو کہ آپ کو سکھایا گیا۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یعنی اس پر جو ہے پوائنٹ کو نوٹ کیجئے گا، آپ کو سکھایا گیا، یہ نہیں کہا کہ جو آپ جانتے ہیں۔ اگر یہ کہنا ہو عربی میں
जो आप जानते हैं तो ये होगा मिम्मा तालम या मिम्मा अलिमता, कि जो आप जानते हैं उसमें से आप मुझे थोड़ा सा सिखा दीजिए। ये नहीं कहा जो आपको सिखाया गया। इसके अंदर वो तरगीब है खज़िर अलैहिस्सलाम को, इनको अपनी शागिर्दी में लेने की तरगीब है। तरगीब कैसे है कि आप खुद भी सोचिए कि आपको भी सिखाया गया है, आपको भी किसी ने सिखाया है, तो आप भी सिखा दीजिए मुझे। हर मुअल्लिम को ये ज़हन में रखना चाहिए कि उसके पास भी जो इल्म है तो किसी ने सिखाया है। बहुत से लोग ये समझते हैं हमने बड़ी मेहनत की है, बड़ी मेहनत की है तो हमको ये इल्म मिला है। अरे भाई, आपको भी किसी ने सिखाया है तो आपको ये इल्म मिला है, आप भी किसी को सिखाइए। हमारे हकीम लोग जो गुजरे हुए, उनके बारे में लोग एक बात कहते हैं कि बहुत सारे हकीम लोग अपना सही इल्म किसी को सिखाए बगैर भी चले नहीं, उन्होंने उसकी तरफ तवज्जो दिया नहीं। आपको भी सिखाया गया है, आप भी मुझे सिखा दीजिए। याद रखिए, दुनिया में जितने भी मुअल्लिम हैं उन सबको सिखाया गया है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो भी किसी को सिखाएं। ये इल्म की ज़कात है, आपको सिखाया गया है, आपको बताया गया है। तो ये दूसरा पॉइंट है, यानी चौथे पॉइंट का दूसरा फायदा है। यहाँ एक पहलू और भी ज़हन में रखिए कि उनको भी सिखाने वाला अल्लाह ताला है, यानी ये भी पहलू इसके अंदर है कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने सिखाया है, आप मुझे उसमें से थोड़ा इल्म मुझे भी जो है सिखा दीजिए। फिर आखिरी पॉइंट, पांचवा पॉइंट क्या है? रुशदा। रुशदा ये आखिर में जिक्र किया गया है कि रुश्द के माने यहाँ पर अच्छा इल्म, हिदायत का इल्म, हिदायत का इल्म, ये चीज है, ये पॉइंट है। सिखाने के लिए एक नबी सिखाएगा तो क्या सिखाएगा? हिदायत की बातें ही सिखाएगा। लेकिन फिर भी ताकीद के साथ ये बात जिक्र की गई है कि आपके पास भी बहुत कुछ इल्म होगा, लेकिन हम जो आपसे सीखना चाहते हैं वो सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से जो इल्म है, हिदायत का इल्म है, जो रहनुमाई है, जो अच्छा और इल्म है, मुफीद इल्म है, सालेह इल्म है, नेक इल्म है, हम उस इल्म को आपके पास से सीखना चाहते हैं। आप हमें सिखा दीजिए उसमें से थोड़ा सा जो आपको सिखाया गया है। इल्म याद रखिए यूजफुल भी होता है, मुफीद भी होता है, सालेह भी होता है और गलत इल्म भी होता है। बहुत से मुअल्लिमीन हैं, इस आखिरी पॉइंट को थोड़ा सा आपके सामने वाज़े करूं, बहुत से मुअल्लिमीन हैं, टीचर्स हैं जो अपने स्टूडेंट को बर्बाद करते हैं और उन्हें गलत इल्म सिखाते हैं, गलत इल्म सिखाते हैं। आप कहेंगे कि गलत इल्म सिखाते, ये कैसे कह रहे? वो तो कुरान का इल्म देते हैं, हदीस का इल्म देते हैं, कहते गलत इल्म। हाँ, एक तो होता है वो इल्म जो आप उसको देते हो किताब का, और एक वो इल्म होता है जो अपने अमल से आप किसी स्टूडेंट को देते हो, वो गलत इल्म होता है। क्या है? आपको मिसाल दे रहा हूं, एक मुअल्लिम, एक टीचर अगर लेट से क्लास में पहुंचता है तो ये अपने स्टूडेंट को सिखाता है कि लेट से आया करो। लेट लतीफ लोग अपने स्टूडेंट को भी लेट लतीफ बना देते हैं। सिखाना है ये मेरे भाइयों, कैसा इल्म है ये? गलत इल्म सिखा रहे हैं। हजारों जो है घंटों की तकरीरें कुछ फायदा नहीं पहुंचाती हैं, और एक दिन का एक टीचर का लेट करना स्टूडेंट को लेट करना सिखा देता है। हमेशा वो अपने सामने नमूना देखना चाहते हैं। वो तमाम मुअल्लिमीन जो अपने स्टूडेंट को क्लास में जाकर के टाइम बर्बाद करते हैं और सही से पढ़ाते नहीं हैं, सही से मुताला करके सही उनको इल्म नहीं देते हैं, ये सब की सब क्या है? गलत इल्म दे रहे हैं। वो गलत इल्म क्या है कि अपने शागिर्दों को सिखाते हैं कि भाई आप भी टीचर बन के ऐसे ही करते रहना, वक्त गुजारते रहना, टाइम पास करते रहना और इसी तरीके से तनख्वाह लेते रहना। क्या है ये सब जो है? ये है गलत इल्म। जो
याद रखिए क्लास में ये तलबा, ये स्टूडेंट बहुत कुछ सीखते हैं, सिर्फ किताब ही नहीं, अपने मुअल्लिम के हर अमल को भी सीखते हैं। इसलिए यहाँ ये पॉइंट भी नोट कीजिए, रुश्दा कहा है यानी हिदायत की बातें आप मुझे सिखा दीजिए। ये है 5 पॉइंट इस आयत के अंदर, नोट रखिएगा। अगर हम बैठ करके फवायद बयान करना शुरू करेंगे तो आपको 10 फवायद बयान कर देंगे। जैसे ये भी एक अहम फ़ायदा ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो कि उलुल अज़्म रसूलों में से एक रसूल हैं, उनका मकाम और मर्तबा खज़िर अलैहिस्सलाम से ऊंचा है, लेकिन फिर भी वो अपने से नीचे आदमी से, कमतर दर्जे के आदमी से, मर्तबे की बात कर रहा हूँ, उसके पास इल्म हासिल करने के लिए जाते हैं। तो इससे एक फ़ायदा, इल्मी फ़ायदा ये होता है कि एक फादिल आदमी मफजूल के पास इल्म हासिल कर सकता है, कोई हरज की बात नहीं। एक उस्ताद अपने शागिर्द से भी इल्म हासिल कर सकता है, अगर शागिर्द के पास कुछ इल्म है जो अलग है और उस्ताद के पास वो इल्म नहीं है। हमें इससे ये बात भी समझ में आती है। तो इस तरह की अगर हम इल्मी फ़वायद आपके सामने बयान करना शुरू करें इससे, तो 10 फ़वायद बयान कर देंगे। लेकिन जो पॉइंट हमने आपके सामने पेश किए, हम उसी पर आज का ये दर्स खत्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।